Hello everyone. So last lecture we have seen various types of functions, right? Various types of functions in which we have discussed about first function. Yes. First we discussed what is function, right? Order form, and then range, domain, codomain. Then various types of function. In that we have discussed one function, onto function, right? So two we have already discussed, and third is bijection function, right? Yes. So hope that two functions, various types of functions is clear to you. So now I will start with the third type of function, that is bijection functions. Okay, so first was one function, second was onto function, and third is bijection function. So now what is bijection function? So a one function and onto function is called bijection function. So in simple sentence, if we want to explain what is bijection function, so we can clearly say that a one and onto function. So when a function is both one also and onto also, then we can say that that function, that particular function is a bijection function. Okay, just see page number 7.11, 7.11. Bijection function. A one and onto function is said to be bijective. A bijective function is also known as a one-to-one correspondence. Okay, so this is the simple meaning of bijection function. Now the fourth type of function is identity function. Okay, so fourth type, identity function. Now here let's see first what is given in the textbook. See, identity function, let A be a non-empty set. Okay, I already said that if we want to discuss a function, first of all it should not be a empty, right? It should not be an empty set or a null set, because if it is an empty or a null set, we can't describe it as a function, or we can't explain, or we can't tell what type of function it is. Okay, so first of all it should not be a empty set, empty function. Okay, then the function I defined by I is to A, from A to A, Ix is equal to x for all x belong to A is called an identity function on A. Okay, so this I think you have not understood, right? So in simple sentence I will say what is an identity function. So identity function, if input is equal to output ना, then it is called a identity function. Means whatever जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि फंक्शन क्या होता है, एक तरह का इट इज लाइक अ मशीन, कि हम कुछ उसमें डाल रहे हैं, इनपुट वी आर पुटिंग एंड वी आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट, राइट? वी आर गेटिंग समथिंग एज अ आउटपुट. So same here, but in this case what it is saying, whenever it is an identity function, whatever input you will put inside the machine, you will get the same output. For example, अगर आपने 1 डाला है मशीन के अंदर तो आपको सेम आउटपुट 1 ही मिलेगा, 2 डाला है तो 2 ही मिलेगा. तो इन सच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स अगर मैं एक्स लेती हूँ, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स की वैल्यू 1 डाली तो मुझे यहाँ पे एक्स की क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगा. अगर 2 डाल रहे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा. तो मैंने इनपुट 1 डाला और मुझे आउटपुट 1 ही मिला. इनपुट मैंने 2 डाला, आउटपुट मुझे 2 ही मिला, सॉरी. ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? अगर मैंने अब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया है हमारा एफ ऑफ एक्स, तो अगर एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 1 डालती हूँ तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, फिर 2 डालती हूँ तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 ही आता है, राइट? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. मीन्स जो भी हम इनपुट डालेंगे वी विल गेट द सेम आउटपुट, देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, सो इफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. Clear? So what is bijection function, what is identity function? Clear? So now let's move to the fifth type of function, that is constant function. Now what is constant function? All the elements in A have the same image in B. ठीक है, constant function means all the elements in A have the same image in B. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स मेरा 24 है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं, एक्स एलिमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरा इमेज जो है वो सेम ही आएगा, राइट? चाहे मैं कोई भी एलिमेंट डालूँ ए का, बट मेरा इमेज जो है वो सेम 24 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो मैं उसका वैल्यू यहाँ पे डाल ही नहीं सकती हूँ.
So I will get the same. So f of x is equal to 24. So f of 1 is 24, f of 2 is 24, f of 3 is also 24. Right? Yes or no? So when such type of function is there where the elements of A have the same image in B, means B के सारे जो images है वो same होंगे, then it is called a constant function. See in your textbook, constant function. Let f of A belong A from B, A to B means defined in such a way that all the elements in A have the same image in B. Then f is said to be a constant function. Okay? तो हमने देखा constant function क्या होता है, right? So clear? Constant function means we will have the same image in B. All the elements of A will have the same image in B. Now the sixth type of function is equal function. Now what is equal function? Equal function means, see, two functions f and g. The two functions f and g are said to be equal, written as f is equal to g if they have the same domain and they satisfy the condition f of x is equal to g of x for all x. Okay, so simply हम उसे equal functions कब बोलेंगे? जब two functions आपको दिए हैं f and g, और जब f of x is equal to g of x आएगा ना, so then it is called as equal function. ठीक है? This आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इक्वल फंक्शन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. ठीक है? और जो सेवेंथ है इनवर्स फंक्शन, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. बाकी दिस ऑल फॉर योर नॉलेज. ओके, सो नाउ सेवेंथ टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज इनवर्स फंक्शन. ओके, नाउ सी व्हाट इज इनवर्स फंक्शन. लेट एफ, पेज नंबर 7.13, let f be a 1 onto function from A to B. Let y be an arbitrary element of B. Then f being onto, there exists an element x in A such that f of x is equal to y. As f is 1, this x is unique. Thus, for each y belongs to B, there exists a unique element x belongs to A such that f of x is equal to y. So, we may define a function denoted by f raised to -1 as. So, f raised to -1 जो है वो उसका मतलब होता है उस फंक्शन का इनवर्स. तो इनवर्स हम कैसे डिनोट करते हैं? f raised to -1. ठीक है? So, f raised to -1 यानी इनवर्स. तो फंक्शन आपको दिया है फ्रॉम a to b, और उसका इनवर्स जब आप करने जाओगे तो क्या आ जाएगा? f raised to -1 फ्रॉम b to a. ठीक है? इनवर्स. So f raised to -1, y is equal to x if and only if f of x is equal to y. The above function f raised to -1 is called the inverse of f. A function is invertible if and only if f is 1 onto. ठीक है? 1 onto. So very very important कि हम inverse function कब कह सकते हैं? जब जो फंक्शन है, या कब कर सकते हैं? जब वो फंक्शन है ना 1 और onto दोनों भी होने चाहिए. जब वो फंक्शन 1 और onto है तभी हम उस पर इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट डू दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो इनवर्स फंक्शन तब कहलाएगा जब वो फंक्शन 1 और onto दोनों होगा तब. ठीक है? अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि थियरी के हिसाब से जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो एग्जाम्पल, f of x is equal to 2x आपको दिया है, समझो f of x is equal to 2x sorry. So now f1 is equal to 2 into x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, so 2 into 1 2 आया. ठीक है? f of 2 is equal to 2 into 2 is equal to 4 आया. ठीक है? फिर से मैंने x की जगह पे 2 ले लिया. अभी f of 3 है तो मैं 2 into x की जगह पे 3 लूंगी, तो 2 3 जा 6 आया. ठीक है? तो अभी ये मेरा क्या है, देखो ये 1 2 3 मेरा प्री इमेज है और 2 4 6 मेरा इमेज है. राइट? प्री इमेज इमेज, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है? जब कोई फंक्शन अप्लाई होता है उसके पहले जो सेट रहता है वो प्री इमेज होता है, और जब हम उसको मशीन में डालते हैं यानी इनपुट हमारा प्री इमेज होता है, और जब उसको मशीन में डालते हैं और आउटपुट निकलता है, बी का सेट निकलता है, वो हमारा इमेज होता है. राइट? तो इमेज हमारा क्या है 2 4 6 और प्री इमेज क्या है हमारा 1 2 3. तो इतना क्लियर है. इसी एग्जाम्पल को वापस नेक्स्ट वाले में लेंगे. अगर हम इसका इनवर्स करने जाए तो f ऑफ a b to a अगर हम करें तो f ऑफ x अगर मैं x अपॉन 2 ले रही हूँ, ठीक है, तो f ऑफ 2 अगर मैं ले रही हूँ, ये मैं अभी इसमें इमेज डाल दूँ. ठीक है? ये पहले मैं इमेज डाला, प्री इमेज डाला तो मुझे इमेज मिला. अब मैं इमेज डाल रही हूँ x की जगह पे तो मुझे प्री इमेज मिलेगा. सी, तो f की जगह x की जगह मैंने 2 डाला तो 2 अपॉन 2 1 आया.
फिर एफ ऑफ 4 मैंने लिया तो एक्स की जगह पे मैंने 4 डाला तो 4/2 फिर से मुझे 2 आया। एफ ऑफ 6 लिया तो एक्स की जगह पे 6 डाला तो 6/2 इज इक्वल टू 3 आया। सी अब मुझे मैंने क्या डाला 2 4 6 जो कि मेरा प्री इमेज था इमेज था 2 4 6। अब मुझे आउटपुट क्या आया 1 2 3 जो कि मेरा प्री इमेज था, राइट। तो मैं जब इमेज प्री इमेज डाल रही हूँ तो मुझे इमेज आ रहा है और जब इमेज डाल रही हूँ तो मुझे प्री इमेज आ रहा है। तो दिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। तो जो हमारा इनपुट है उसका ऑपोजिट हमारा आउटपुट और फिर आउटपुट है उसका ऑपोजिट इनपुट, तो इनवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कैसे आया ये मैं यहाँ पे देखो वापस से आपको फॉर्मूला कैसे मतलब हम कर सकते हैं वो आपको बता रही हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिया मैंने, ठीक है। और उन्होंने y से उसको ये किया है रिलेट, तो y इज इक्वल टू 2x लिया मैंने। एफ ऑफ एक्स के ऊपर y लिया, y इज इक्वल टू 2x। ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे करते हैं। अब हमें इसे इन्वर्स करना है तो x को मैंने यहाँ पे रखा, ये 2 को मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ तो y/2 हो गया। तो x इज इक्वल टू y/2 यहाँ तक, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू जो है ना y को x की जगह पे लाएंगे और x को y की जगह पे लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू x/2। ये हो गया इनवर्स। तो इस तरह से इनवर्स करते हैं हम, ठीक है। तो f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x/2 आया, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया था। और एक एग्जांपल अगर ले तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है, समझो हमने, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। अब f ऑफ x की जब मैं y डालूंगी तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगी तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y आया करे, इतना क्लियर है। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यहाँ तक तो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब इसका इन्वर्स करना है तो मैं जो इसका रूट है वो मैं x को दूंगी, ठीक है, और y से वो रूट हट जाएगा, उसको बोलते हैं इनवर्स। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। तो ये हो गया मेरा इनवर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि फंक्शन का इनवर्स x इज इक्वल टू x/2 या फंक्शन का इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। सो हमने 7b एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर सीखा है। सो लेट वंस रिवाइज। सो सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि क्या देखा, हाँ वन इम्पॉर्टेंट वो कोरिलेशन, वन सेकेंड, हाँ यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा, वेरी इंपॉर्टेंट कार्टेशियन, राइट। ऑर्डर पेयर देखा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा कि कैसे हम उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट, वो हमने देखा। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन देखा कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन कब कहलाता है वो रिलेशन। फिर हमने डोमेन देखा, राइट, रेंज देखा, को डोमेन देखा। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा जिसमें हमने 1 1 फंक्शन देखा। 1 1 फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब होता है एक्चुअली जब वो नंबर फर्स्ट एलिमेंट, ओके, सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है, तब उसे फंक्शन कहते हैं। और 1 1 फंक्शन कब कहते हैं, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों भी रिपीट नहीं होते, तब वो हमारा 1 1 फंक्शन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू और सर्जेक्टिव क्या होता है, जब इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, तो हर एलिमेंट बी का, उसका हर एक एलिमेंट बी में जो भी एलिमेंट उसका हर एक का प्री इमेज ए में होना चाहिए, तब वो ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। जिसमें हमने एग्जांपल देखा 2 4 6 20 नहीं 2 फिर 4 फिर 8 16 समथिंग 25, जिसका 1 2 3 था इमेज और फिर एक का 16 का नहीं था वहाँ पे प्री इमेज, राइट। तो उसे हम 1 1 ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा बाइजेक्शन फंक्शन, जो इसी वीडियो में बाइजेक्शन फंक्शन क्या होते हैं वो देखा। फिर कांस्टेंट फंक्शन देखा, इक्वल फंक्शंस देखा एंड इनवर्स फंक्शन देखा, ठीक है। सो इतना इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ओके। सो होप कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आए हो, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। सो दिस इज various types of functions, okay. So let's start the exercise now. Okay, so now question number 1 of exercise 7b. Just see, if a is equal to x comma y comma z and b is equal to p comma q comma r comma s, which of the relation on a to b are function?
ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा है कि दो सेट्स दिए आपको ए और बी, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन पूछा है आपको। तो फंक्शन कब होता है ये तो हमें क्लियरली पता है कि व्हेन अ सेट इज कॉल्ड अ फंक्शन, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमें दिया है ए सेट एक्स वाई जेड और बी सेट पी क्यू आर एस, तो हम आंसर्स से ऑप्शन जो है उन्हें लिख के देखते हैं कि कौन सा जो सेट है वो फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट ए जो ऑप्शन हमें दिया है वो क्या दिया है, एन पी एक्स क्यू वाई आर और जेड एस, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन कब कहलाता है, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, करेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर शुड नॉट गेट रिपीटेड, देन इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, राइट। बट यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखो एन पी एक्स क्यू वाई आर जेड एस सब अलग आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी अलग है, सेकेंड एलिमेंट भी अलग है, सब अलग आ रहे हैं, बट फिर भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों? कैन यू गेस व्हाई? यस, बिकॉज यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर है एन पी है, लेकिन एन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे दोनों सेट्स में। यस, कैन यू सी, एन एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो व्हेन एन इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ सेकेंड बी, देखो बी ऑप्शन एक्स एस वाई एस एक्स एस वाई एस जेड एस। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, डज इट गेटिंग रिपीटेड? नहीं, तीनों भी एलिमेंट अलग अलग है, एक्स भी अलग है, वाई जेड तीनों अलग है। सेकेंड एलिमेंट इज गेटिंग रिपीटेड एस एस एस, बट इट्स ओके। हमने देखा है कि अगर फंक्शन कहलाना है तो उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर सेकेंड एलिमेंट रिपीट होता है तो इट्स ओके, राइट। तो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज अ फंक्शन, राइट, बिकॉज इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट गेटिंग रिपीटेड। ओके, नाउ लेट्स चेक, और एक चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन देखिए वाई पी है, वाई क्यू है, वाई आर है, जेड एस। तो यहाँ पे वाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो रिपीट हो रहा है बार बार, वाई वाई वाई, सो ये फंक्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नाउ डी ऑप्शन एक्स पी वाई आर जेड एस, राइट, एक्स पी वाई आर जेड एस। तो यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं एक्स वाई जेड, हाँ अलग अलग आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, so first element is not getting repeated, so it is a function. Okay, so समझ में आया? function means clear, whenever the first element is not getting repeated, it is, the set is called as a function. Okay, if second element is getting repeated, it's okay. Okay, so in question number 1 your option is B and D, so both the option is correct. अगर एग्जाम में ऐसा आता है दोनों भी अगर राइट है तो दोनों लिख सकते हो, बट मोस्टली नहीं होगा ऐसा, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपका, तो फिर एग्जाम में जो सही होगा उस ऑप्शन पे आप टिक करना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स कॉमा वाई, फिर आपको इक्वेशन दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज अ, आर मीन्स रियल नंबर, इज अ, तो रियल नंबर इज अ, ऑप्शंस क्या दिया, नॉट अ फंक्शन, बी अ कंपोजिट फंक्शन, सी 1-1 mapping, 1-1 mapping means 1-1 function, and D none of this. So let's see what it is. Okay, so x plus y is equal to 5 आपको दिया है, this ये इक्वेशन आपको दिया है, इस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y is equal to 5 minus x आया, ओके, y is equal to 5 minus x आया, जब y is equal to 5 minus x आ रहा है, अब हम x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, तो अगर मैं 1 ले रही हूँ एक्स की वैल्यू 1 2 3, तो अगर उसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, तो 5 minus 1 आई विल गेट y वैल्यू 4, 5 minus 2 आई विल गेट y वैल्यू 3, एंड 5 minus 3 आई विल गेट y वैल्यू 2। तो जब मैं इनको ऑर्डर फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा क्या आएगा, 1 4 2 3 3 2, राइट, 1 4 2 3 3 2, राइट, यस। अब आप देखिए, जस्ट नोटिस द सेट, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है और थर्ड एलिमेंट 3 है, ठीक है, 1 2 3, is it getting repeated? No. So this set, is it a function? Yes, definitely it is a function. Now let's check whether the second element is also getting repeated or not. So second element is 4, then 3, then 2. Is it getting repeated? No. So when first element is not getting repeated, it is definitely a function. But if second element is not is also not getting repeated, then what it is? Then it is a,
1 1 फंक्शन, राइट। हमने देखा है ना कि फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन होता है, लेकिन अगर सेकेंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन है, राइट। तो हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो सी है, ठीक है। नॉट अ फंक्शन, अ कंपोजिट फंक्शन, 1 1 मैपिंग, तो 1 1 मैपिंग है, ठीक है। 1 1 मैपिंग है, 1 1 फंक्शन, सेम। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 दिया आपको, वेयर एक्स कॉमा y belongs to r is, so r अगेन रियल नंबर, ठीक है। और आपको सिंपली जो इक्वेशन दिया है वो बोले x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y मतलब कोई भी रियल नंबर आप डाल लो, लेकिन x की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 4 ही है। तो x तो 4 ही है, y आप कुछ भी डाल लो, ऐसा उन्होंने कहा है हमें, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। तो x कॉमा y, x इज इक्वल टू 4, तो मैं x तो 4 डाल देती हूँ, y में कुछ भी डालती हूँ रियल नंबर्स, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो मैंने ये नहीं डाल दिया क्योंकि ये उन्होंने कहा था कि y जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और x इज इक्वल टू 4 दे दिया उन्होंने, तो x तो 4 4 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं जब इसका ऑर्डर फॉर्म बनाऊंगी तो मेरा 4 0 4 1 4 2 4 3 का ऑर्डर फॉर्म बनेगा, राइट। 4 0 4 1 4 2 4 3। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो रिपीट हो रहा है, यस, इट इज गेटिंग रिपीटेड कंटिन्यूअसली, 4 4 4 4। सो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटिंग, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, करेक्ट, यस नो। फर्स्ट एलिमेंट इज getting repeated, so it is not a function. ओके, ये जस्ट आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो आपका ऑप्शन क्या दिया देखिए, ए नॉट अ फंक्शन, बी नॉट अ फंक्शन, बी फंक्शन, सी 1 1 मैपिंग और डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर आएगा ए नॉट अ फंक्शन। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी वेरी इजी, फटाफट हो जाएगा। देखिए, एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है यहाँ पे, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सो वाई अगेन बिलोंग्स टू अ रियल नंबर इज। सो फिर से वो पूछ रहा है कि क्या वो इक्वेशन जो सेट होगा वो नॉट अ फंक्शन होगा, अ फंक्शन होगा, इनवर्स मैपिंग होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो चलो चेक करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दे दिया क्लियरली, तो अगर x में नंबर सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे y क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर मिलेगा, राइट। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो x में 1 2 3 लेती हूँ, ठीक है। तो y जो है वो x का स्क्वायर है, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, करेक्ट। अब मैं इसका ऑर्डर फॉर्म में लिखती हूँ, तो ऑर्डर फॉर्म मेरा क्या आ जाएगा, 1 1 2 4 3 9, करेक्ट। सो 1 1 2 4 3 9। अब आप चेक कीजिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहे। तो ये फंक्शन भी है और 1 1 फंक्शन भी है, राइट। लेकिन आपके ऑप्शन में 1 1 फंक्शन के बारे में कहा गया है क्या, नहीं, सिर्फ नॉट अ फंक्शन, फंक्शन इनवर्स मैपिंग तो नहीं है, डेफिनेटली इनवर्स कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इनवर्स मैपिंग तो नहीं है, तो इट इज अ फंक्शन, राइट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटिंग, सो इट इज अ फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन है आंसर बी, राइट, ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x comma y, x is smaller than y, where x comma y belongs to r is, so again y belongs to a real number, और हमें पता है कि x जो है वो y से स्मॉलर है, y से छोटा है, ठीक है। तो चलो फिर से सेम करते हैं। और पूछा क्या गया है, ऑप्शंस क्या दिए, नॉट अ फंक्शन, अ फंक्शन, 1 1 मैपिंग, नन ऑफ दिस। तो चलो देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, कि 1 1 मैपिंग है, क्या है। तो ये हमें इक्वेशन दिया है कि x जो है y से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले y ले लेती हूँ ताकि फिर मैं डिसाइड कर सकूँ कि x क्या होगा मेरा, क्योंकि x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। तो मैं पहले y लिख लेती हूँ 2 3 4, ठीक है। तो y मैंने 2 3 4 लिख लिया। अभी x जो है वो मेरा y से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा 1 है, 3 से छोटा भी 1 भी है या 2 भी है, तो मैंने 1 ही ले लिया। और 4 से छोटा मैंने 2 ले लिया, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी है वो ले लो, ठीक है। तो अगर 2 से छोटा 1 लिया, 3 से छोटा भी 1 ही लिया, 4 से छोटा 2 लिया। अगर मैं इसका ऑर्डर अभी करूंगी तो मुझे 1 2
1 3 2 4 आ रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 भी लेती हूँ तो भी 2 2 वापस 2 बार आता है, राइट। तो फर्स्ट ये पहले आएगा, ये x वाला फर्स्ट एलिमेंट होता है। मैंने पहले y लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि y जो है वो x जो है y से छोटा होना चाहिए इसलिए, बट ऑर्डर क्या होता है, x का एलिमेंट पहले और फिर y का एलिमेंट पहले, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो मेरा ऑर्डर जो आएगा 1 2 1 3 2 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो भी मेरा 2 2 रिपीट होगा, तो रिपीट तो होना ही है, कैसे भी ले लो रिपीट तो होना ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटिंग, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, नॉट अ फंक्शन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज इट इज गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ 1726 इज, द डोमेन ऑफ 17,26 इज। नाउ व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? हाँ, याद आ रहा है डोमेन क्या होता है? हमने देखा है डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारा फॉर एग्जांपल दो सेट दिए, ए सेट और बी सेट, राइट। ए सेट और बी सेट, दो सेट दिए आपको, तो ए जो होता है वो हमारा डोमेन होता है, राइट। यानी कि इनपुट हमारा डोमेन होता है, और बी सेट जो कि आउटपुट होता है वो हमारा को डोमेन होता है, राइट। यस, तो डोमेन जो है वो हमारा ए है, इनपुट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ देखो 1 7 का क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 6 का क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। क्योंकि जब ऑर्डर हम करते हैं, जब पेयर हम करते हैं, जब पेयरिंग हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट देन सेकेंड एलिमेंट, फिर अगेन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे 1 7 का 1 आएगा और 2 6 का 2 आएगा, तो मेरा जो डोमेन है वो क्या हो गया, 1 2, है ना, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो शॉर्ट में अगर बताओ तो डोमेन ऑफ 1726, डोमेन ऑर्डर पेयर में का फर्स्ट एलिमेंट और प्री इमेज, आउटपुट नहीं, इनपुट, ठीक है। तो 1 2 मेरा इनपुट है, 1 डाला तो 7 आया, 2 डाला तो 6 आया, तो 1 2 मेरा डोमेन है। और को डोमेन अगर पूछा है तो क्या होगा, 7 और 6, राइट। को डोमेन अगर पूछेंगे तो 7 और 6, ओके। सो ये हमारा आंसर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेंज ऑफ 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0 इज। तो रेंज क्या होता है, हमने देखा रेंज क्या होता है, जो भी इमेज हम जो भी प्री इमेज हम डाल रहे हैं और जिसका इमेज हमारे बी सेट में आ रहा है, जो भी प्री इमेज हम डाल रहे हैं ए सेट का, ठीक है, और हमारा आउटपुट जो है वो इमेज हमारा आ रहा है, तो हम उसे रेंज कहते हैं, राइट। हर प्री इमेज का इमेज हमारा रेंज होता है, हर प्री इमेज का इमेज हमारा रेंज होता है। लेकिन अगर जिस इमेज का प्री इमेज हमारे ए सेट में ना हो तो वो रेंज नहीं कहलाता है, तो हर प्री इमेज का इमेज हमारा रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ 3 0 2 0 1 0 0 0, तो आप मोस्टली बी सेट का देखोगे तो 0 0 0 0 आ रहा है, राइट। प्री हम इमेज को देखेंगे मोस्टली, तो 3 हमारा यहाँ पे प्री इमेज है जिसका इमेज 0 आ रहा है, 2 हमारा प्री इमेज है जिसका इमेज 0 आ रहा है, 1 हमारा प्री इमेज है जिसका इमेज 0 आ रहा है, 0 हमारा प्री इमेज है इसका फिर से इमेज 0 ही आ रहा है। यानी कि रेंज जो है ना वो 0 0 0 0 है, राइट। तो क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है एक ही नंबर 0 0 0, तो हम उसे एक ही बार दिखाएंगे, हम रिप्रेजेंट एक ही बार करेंगे, जितने बार आया 0 उतने बार नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 ही हमारा होता है, रेंज मीन्स इमेज होता है हमारा, ठीक है। इन शॉर्ट रेंज हमारा इमेज ही होता है, तो आंसर बी, ठीक है। एक ही बार करेंगे, 4 बार रिपीट नहीं करेंगे 0 को, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. The domain and range of x, y is to y is equal to x square, where x, y belongs to R is, so वो पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो y is equal to x square आपको दिया है, तो y is equal to x square दिया है, मीन्स x की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल y जो है वो x का स्क्वायर है, तो अगर x में ले लेती हूँ 1 0 2 -1 -2, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 0 2 -1 -2 ले लेती हूँ, ठीक है, तो y जो है वो x का स्क्वायर है, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 0 का स्क्वायर 0 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, -1 का स्क्वायर 1 आया, -2 का स्क्वायर 4 आया। देखिए अगर जब x की वैल्यू मैं माइनस में भी ले रही हूँ ना,
तो भी मुझे y जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो नेगेटिव भी अगर आप लोगे x की वैल्यू तो वो मुझे पॉजिटिव में ही मिलेगा। अब ये 1 0 ये सब क्या है, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने रियल नंबर्स डाले, रियल में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, रियल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर मैं x की वैल्यू रियल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी डालती हूँ तो मुझे y जो है वो क्या मिल रहा है, रियल नंबर्स तो मिल ही रहा है 1 2 1 0 4 1 4, बट हाँ, तो रियल नंबर्स तो मिल रहे हैं, बट कौन से रियल नंबर्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव भी डाल रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिल रहे हैं। तो आप ऑप्शन चेक करो, देखिए, तो ए ऑप्शन है रियल और नेचुरल नंबर्स, बी ऑप्शन है रियल और पॉजिटिव रियल्स, सी ऑप्शन है रियल्स एंड रियल्स, फिर नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन रियल्स एंड नेचुरल नंबर्स तो नहीं होगा, बी ऑप्शन रियल एंड पॉजिटिव रियल। देखिए, तो रियल अगर आप नंबर डालते हो, रियल मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रियल्स डालते हो तो आपको y जो मिल रहा है ना वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिल रहे, पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रियल्स कॉमा पॉजिटिव रियल्स। फिर सी ऑप्शन रियल रियल, तो रियल रियल नहीं है क्योंकि y हमें नेगेटिव में नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव में ही मिल रहा है, ठीक है, और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, रियल कॉमा पॉजिटिव रियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट द डोमेन ऑफ x बी द सेट 1। अब वो बोल रहा है डोमेन ऑफ x जो है वो सेट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1। अब बोल रहे कौन से फंक्शन जो है ना वो आंसर उसका इक्वल टू 1 आ रहा है। तो लेट्स चेक, तो हम ऑप्शन लेके चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स दिया है, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स दिए, तो हमें वो वहाँ पे दे दिए क्लियरली कि सेट जो है वो 1 है, तो हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आया, और g ऑफ x तो फिर से g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आया, तो आंसर भी इक्वल टू 1 ही आ रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। सेकंड बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या दे रहा है, f ऑफ a इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अभी f ऑफ a इज इक्वल टू x बोल रहे हैं तो a तो नहीं होना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ही रिप्रेजेंट ही गलत किया है, तो ये तो रॉन्ग होगा ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो वो नहीं होगा। सी ऑप्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कॉमा जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हम चेक करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं f ऑफ x का उसके नीचे कर रही हूँ और g ऑफ x का उसके नीचे स्टेप्स कर रही हूँ, ठीक है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह पे मैं अभी 1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया, ठीक है। अभी g ऑफ x अगर सॉल्व करूँगी तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर तो 4 आया। ये 4 4 दोनों आंसर तो इक्वल है, 4 है, बट हमें क्या बोला था, आंसर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सो हमारा आंसर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 our answer is option A. Okay, now let's move to question number 10. If f of x is equal to 1 upon 1 minus x, so f of minus 1 is, तो अभी f of minus 1 फाइंड करना है हमें, so very easy, just put x की जगह पे हम minus 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो f of x is equal to 1 upon 1 minus x, f of minus 1 is equal to, तो f of minus 1 is equal to 1 upon 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया उधर, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, राइट, ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया, तो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ जो है वो हमारा ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी हाफ है, ऑप्शन सी 0 है और डी नन ऑफ दिस, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाफ। ओके, now question number 11, if g of x is equal to x minus 1 upon x, तो g of minus half is same जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया अभी, सेम वे x की जगह पे हम माइनस हाफ 1 अपॉन 2 डाल के सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकालेंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो g माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस हाफ, फिर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे माइनस हाफ। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है लेकिन यहाँ पे नहीं है,
तो हम डिनोमीटर कॉमन करेंगे, तो मैंने 2 डिनोमीटर कॉमन किया, ये तो -1 ही आया, यहाँ पे 2 1 2 आ गया, -2 आ गया, राइट। अब -1 -2 -3 आ गया, और यहाँ पे अपॉन 2 डिनोमीटर सेम है, होल डिवाइडेड बाय -½ है, ठीक है। तो -1 -2 -3 आ गया, अपॉन 2 आ गया, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, राइट। तो 2 अपॉन -1 आ गया, ठीक है। अभी माइनस माइनस तो कट हो गया, 2 2 भी कट हो गया, तो 3 अपॉन 1 मीन्स 3 आया। तो हमारा आंसर डी है, ऑप्शन डी 3। ओके, समझ में आया? यस, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 11 हो गया ना, 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ सी, इफ f of x is equal to 1 upon 1 minus x and g of x is equal to x minus 1 upon x, then f o g x is, जब भी ये f o g x या g o f x ऐसे कुछ आता है उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी f का फंक्शन हम g में डाल रहे हैं तो f o g x हो जाता है, या g का फंक्शन हम f में डाल रहे हैं तो g o f x हो जाता है, ठीक है। इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करने बोला है, f o g x फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा इक्वेशन तो उन्होंने दिया है f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और बोला क्या देन एफ ओ जी एक्स करना है, ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स करना है मीन्स हमें एफ ऑफ एक्स में हमें पूरा g डालना है। एफ ओ जी एक्स बोला है तो एफ ऑफ एक्स, एफ के फंक्शन में g का फंक्शन डालना है, ठीक है। कैसे बता रही हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है, ठीक है। हमें फाइंड एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है फॉग एक्स, जो कि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो वी हैव टू पुट द होल फंक्शन ऑफ जी एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। तो इन एफ ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे हमें पूरा g का फंक्शन डालना है। कैसे, लेट्स सी। तो एफ ऑफ एक्स हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स था, राइट। तो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, अभी इस x के जगह पे हम पूरा का पूरा g का फंक्शन डालेंगे। g क्या है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इस x के जगह पे हम पूरा g का फंक्शन डाल देंगे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 होल डिवाइडेड बाय 1, अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया माइनस, और ये सेम आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 हो गया, राइट। तो x माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x आ गया, राइट। अब देखिए 1 अपॉन एक्स, एक्स कट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव x है एक नेगेटिव x है, बचा क्या 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 इंटू एक्स अपॉन 1 आ गया, जो कि 1 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, राइट। एक्स अपॉन 1 इज एक्स ओनली, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए, दैट इज एक्स, ठीक है। तो ये होता है एफ ओ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन, जिसमें एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। पूरे का पूरा एक्स की जगह पे पूरे का पूरा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अगर एफ ओ जी एक्स दिया है तो एफ के फंक्शन में जी को डालना पड़ता है, अगर जी ओ एफ दिया है, जी ओ एफ एक्स दिया है तो जी के फंक्शन में पूरे एफ को डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ए था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, देन जी ओ एफ ऑफ एक्स इज, तो यहाँ पे देखो जी ओ एफ एक्स फाइंड करने बोला है। जैसे कि मैंने आपको कहा एफ ओ जी फाइंड करने बोला है, तो एफ फंक्शन में, एफ के फंक्शन में पूरा जी का डालना है फंक्शन, अगर जी ओ एफ फाइंड करने बोला है तो जी के फंक्शन में पूरा एफ का फंक्शन डालना है, ठीक है। तो सेम जैसे 12th क्वेश्चन किया, सेम 13th करना है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने एफ के फंक्शन में डाला था जी को, और यहाँ पर जी के फंक्शन में एफ को डालना है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में करके दिखाया आपको, पूरा स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखे, तो डायरेक्टली मैं जी ओ एफ कर रही हूँ। तो जी ओ एफ कर रही हूँ तो मेरा जी फंक्शन क्या देखिए, एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, तो x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x है, तो x माइनस 1 है पहले, तो सबसे पहले x माइनस 1 है, तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, पूरा f का फंक्शन। f का फंक्शन क्या है देखिए, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो पूरे x की जगह पे मैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखूँ, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, उसके बाद फिर क्या था जी में माइनस 1 था, होल डिवाइडेड बाय x था, तो फिर से x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आया? अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो 1
अब फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं 1 माइनस एक्स का डिनोमिनेटर अगर लूँगी तो 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिया तो यहाँ पे तो 1 आया, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो गया ना, माइनस में टू माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आया, फिर होल डिवाइडेड बाय ये नीचे का सेम 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा करूँगी, ये 1 तो कैंसिल हो गया, बचा x अपॉन 1 माइनस एक्स और नीचे बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जो कि उसका रेसिप्रोकल आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, अब कैंसिल करोगे तो 1 माइनस एक्स कट हो गया, बचा x अपॉन 1, तो आपका आंसर होगा x ओनली, सो विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 योर आंसर इज बी। तो होप 12 और 13 सेम था, कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था, सिर्फ उतना ही करना, सेम, कुछ हार्ड नहीं है। आपको अगर एफ और जी दिया है तो आपको फंक्शन एफ के फंक्शन में जी के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर जी ओ एफ दिया है तो जी के फंक्शन में एफ के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो वेरी इजी। ओके, okay, question number 14, see the function f of x is equal to 2 raised to x is, so the function f of x is equal to 2 raised to x बोले। ठीक है, तो 2 raised to x हम कोई भी x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 2 0 -1 -2 ले रही हूँ तो f of x मुझे क्या आएगा, देखो 2 raised to x बोला है तो 2 raised to 1 2 आएगा, 2 raised to 2 4 आएगा, राइट। अगर सीक्वेंस में आप लिखने जाओ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, 2 4 1 हाफ 1 अपॉन 4 ये आएगा। ओके, ठीक है, सो अगर आप x की वैल्यू 1 2 0 -1 -2 ले रहे हो तो आपका f ऑफ x क्या आएगा, 1 अगर ले रहे हो तो 2 रेज टू 1 2, फिर 2 रेज टू 2 करोगे तो 4, 2 रेज टू 0 करोगे तो 2 रेज टू 0 इज 1, राइट। सो 1 2 रेज टू -1 कर रहे हो तो 2 रेज सी यहाँ पे 2 रेज टू -1, तो हम क्या लिखते हैं उसको एज अ हाफ, क्योंकि माइनस है नेगेटिव है तो हाफ लिखोगे, और 2 रेज टू -2 अगर करोगे तो 1 अपॉन 4। ठीक है, तो आपका क्या है 2 4 1 हाफ 1 अपॉन 4। अगर इसे आप ऑर्डर में लिखोगे तो 1 2 2 4 -1 हाफ -2 1 अपॉन 4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ना ही फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना ही सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मीन सब डिफरेंट आ रहा है, तो फंक्शन तो है बट इट इज ऑल्सो 1 1 मैपिंग, 1 1 फंक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या आएगा, सी ऑप्शंस दिए 1 1 मैपिंग, 1 मेनी, मेनी 1, नन ऑफ दिस, तो 1 1 मैपिंग, we will take it as a 1 1 mapping, okay, so option A is the correct option. Now question number 15, the range of the function f of x is equal to log 10 1 plus x for the domain of real values of x when 0 is smaller than or equal to x and x is smaller than or equal to 9 is, तो ये बहुत सिंपल है, बस log का यूज हुआ है, ठीक है, बट इतना नहीं है log का। लेट्स सी, तो आपको सीधे से क्या दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 10 1 अपॉन x दिया है, और डोमेन कहाँ तक बताया, डोमेन यानी कि जो प्री इमेज है वो कहाँ तक बताइए कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी या इक्वल होगी, और x की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी, सॉरी x की जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल या बड़ी होगी और 9 से इक्वल या छोटी होगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर सेट क्या बनेगा 0 9 यानी 0 to 9 होगा। ठीक है, 0 to 9, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 10 1 अपॉन x। अब हम क्या करते हैं, ये सेट को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 और 9 को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f 0 पहले ले लेते हैं, तो लॉग 10 ब्रैकेट 1 प्लस x की जगह पे 0 ले लिया मैंने। ठीक है, तो लॉग 10 रेज टू क्या आया 1 प्लस 0 इज 1, तो लॉग 10 रेज टू 1, तो लॉग 1 बेस 10, log 1 बेस 10, we read it as this ना, log 1 बेस 10, yes, तो log 1 हमेशा क्या होता है 0, तो हमारे यहाँ पे log 1 इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पे 0 आंसर आया। नेक्स्ट हम f9 ले लेते हैं, तो f9 अगर हम लेंगे तो इज इक्वल टू log 1 प्लस 9 बेस 10, log 1 प्लस 9 बेस 10, 9 कहाँ से आया x की वैल्यू, ओके,
तो 1 + 9 क्या हो गया 10 हो गया, तो log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 जब सेम होता है बेस और नंबर तो क्या लेते हैं 1 आता है, log 10 बेस 10 तो 1 आ गया, तो हमारा 0 और 1 आ रहा है राइट, 0 और 1 हमारा सेट बन रहा है। तो आंसर विच ऑप्शन इज करेक्ट सी 15 का A 0 1 और C में भी 0 1 ही दिया है, तो बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट A एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द इनवर्स फंक्शन f raised to -1 of f of x is equal to 2x is। तो अभी इनवर्स फंक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं हमें पता है, f of x is equal to 2x दिया है, ओके, सो y is equal to 2x लेते हैं, फिर इस x को यहीं पे रखिए, 2 को यहाँ पर लेके जाते हैं, तो x is equal to y/2 आ गया, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, अब अगर हमें इसको इन्वर्स करना है तो हम क्या कर देते हैं, x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं राइट, तो x की जगह पे y लिखते हैं, y की जगह पे x लिखते हैं, तो y is equal to x/2 आ जाता है, ये हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन। तो f of x is equal to x/2, यही हमारा इन्वर्स फंक्शन है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइट। हमने ये देखा है पहले भी, y is equal to 2x, f of x is equal to 2x दिया है, तो y is equal to 2x, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, तो x is equal to ये 2 यहाँ पर गया तो y/2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर इसे हमें इन्वर्स करना है तो हम x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज x एंड y, तो y is equal to x/2 आया, तो f of x is equal to x/2, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, f of x is equal to, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, f of x is equal to x plus 3 दिया है, g of x is equal to x square दिया है, देन f o g x is, तो सेम जैसे हमने 13th और 12th किया था सेम वैसे ही करना है। तो शॉर्ट में मैं बताती हूँ, f of x x plus 3 दिया है, g of x x का स्क्वायर दिया है, सिंपल f o g बनना है, यानी कि फंक्शन f के फंक्शन में g के फंक्शन को डालना है राइट। तो f o g x is equal to x plus 3 है, देखिए हमारा f, तो x की जगह पर मैं क्या डालूंगी x का स्क्वायर जो कि g का है, तो x स्क्वायर प्लस 3, बस और आगे कुछ कर ही नहीं सकते। सो ये हमारा ऑप्शन है क्या, देखिए ए ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 3 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ए x स्क्वायर प्लस 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सी इफ f of x is equal to x plus 3, g of x is equal to x का स्क्वायर, देन fx into gx is, यानी सिंपल मल्टीप्लाई करना है, fx डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, fx into gx करना है, तो सिंपली कर लीजिए f of x x plus 3, g of x x स्क्वायर, तो f of x into gx, तो x plus 3 into x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर into x, x का क्यूब प्लस 3 into x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन a x plus 3 होल स्क्वायर है, b x स्क्वायर प्लस 3 है, c x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन c इज द करेक्ट आंसर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, again it is an inverse and log भी included है। okay, the inverse h raised to -1 when h of x is equal to log x base 10 is, okay, let's see now, inverse बोला है, okay, तो h of x is equal to log x base 10 है ना, तो y is equal to log x base 10, सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, ओके, सेम एज इट इज, y is equal to log x base 10। अब हम यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, जब भी log का यूज हो रहा है 10, यानी 10 का पावर क्या होगा, तो ये y होगा, 10 का पावर y। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली हम उसको इंटरचेंज कर देते 10 का पावर y, तो 10 रेज टू y इज इक्वल टू x। ओके, हाँ, यहाँ पर बेस है ना, तो यहाँ पर जाके वो क्या हो गया, पावर हो गया, ये y यहाँ पर जाके इसका पावर हो गया, तो 10 रेज टू y और ये x यहाँ पर आ गया। ठीक है, हमने इंटरचेंज कर दिया उसको, तो y इज इक्वल टू 10, अभी हम सिंपल में y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का पावर x है, लेकिन अब ये जब यहाँ पर चला जाएगा तो ये 10 का पावर y हो गया इज इक्वल टू x, जो x यहाँ पर है वो x यहाँ पर हो गया और लॉग हट जाएगा। ठीक है, अब हम उसे इंटरचेंज करेंगे कि हमें इसे इन्वर्स में लाना है, तो y इज इक्वल टू 10 रेज टू x, ये x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया, ये इंटरचेंज हो गया। ये सिंपल, बस जब भी लॉग जो भी बेस होगा लॉग का, वो हमारा उसका y जो होगा वो पावर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना याद रखिए। तो हमारा ये h रेज टू -1 x इज इक्वल टू 10 रेज टू x आ गया। ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी, 10 रेज टू x। ठीक है, तो इसका इनवर्स हमारा 10 रेज टू x आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द फंक्शन h of x is equal to 10 raised to 1 plus x, the domain of real values of x where x is
greater than or equal to 0 and smaller than or equal to 9. The range is same as question number कौन सा क्या था 15 क्वेश्चन के जैसे करना है. ठीक है, तो लेट्स सी h ऑफ x इज इक्वल टू 10 रेज टू 1 प्लस एक्स बोला है. डोमेन आपको x जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है और 9 से स्मॉलर और इक्वल है. ठीक है, तो हमारा डोमेन जो हो गया वो 0 to 9 हो गया. राइट, अब हम एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक बार 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो h ऑफ x इज इक्वल टू 10 रेज टू 1 प्लस एक्स. तो h ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1 प्लस 0. तो 1 प्लस 0 इज 1, तो 10 रेज टू 1 आ गया हमारा आंसर इसका. अब हम 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो h ऑफ 9 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, तो 10 रेज टू 10 आ गया. यानी कि हमारा जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है 10 से लेके 10 रेज टू 10 तक बन रहा है. राइट, तो 10 hx जो होगा वो 10 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और 10 रेज टू 10 से छोटा या इक्वल हो सकता है. ठीक है, जैसे कि हमें ऑप्शंस में दिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा. ठीक है, क्योंकि बी नहीं हो सकता है क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, हमारा 0 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है फर्स्ट. तो hx जो है वो 10 तो है, 10 इक्वल टू 10 है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग होगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा और डी नन ऑफ दिस तो नहीं है. तो ए ऑप्शन कि hx जो है h ऑफ x जो है वो 10 से इक्वल या स्मॉलर और 10 रेज टू 10 से सॉरी hx जो है वो 10 से ग्रेटर या इक्वल होगा एंड 10 रेज टू 10 से स्मॉलर या इक्वल होगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चंस. यस, अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कि मतलब इतना सारा थियोरी करने का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है इसमें, बट हमने देखा यहाँ पे 1 फंक्शन इनवर्स ये सब मोस्टली है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाइजेक्शन, इक्वल, कांस्टेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जिस पे इम्पोर्टेंट था उस पे बेसिस पे क्वेश्चंस दिए. तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड होप आपको ये समझ में आया और इजी लगा हो. ठीक है, वेरी इजी एक्सरसाइज, इवन फर्स्ट एक्सरसाइज वाज इजी एंड दिस आल्सो. ठीक है, सो जस्ट प्रैक्टिस इट and next 7C, exercise 7C we will continue in the next lecture. ठीक है, thank you.